morning to all of you. Very good morning. Thirty-four. Good morning. Good morning, Ruchika. I think Ruchika is a new student. Poonam, Divya, Yamini. Good morning all. In last class, we have discussed about what? Yes. Have you revised your earlier topic? Because Saturday, Sunday को सिर्फ हमारी classes होती है. You need to revise. Okay. Otherwise, link लगेगी नहीं. If link is not maintained, तो आपका कोई concept properly create होगा नहीं. ठीक है. तो जो स्टूडेंट रिवाइज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जो स्टूडेंट्स को मैंने आई गेस सबको मैंने मेरी यूट्यूब का बताया है, चैनल क्या है, कहाँ पे है और क्या नाम से है, और उस पर एवरी वीडियोज एवरी रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल देयर, सो यू कैन गो थ्रू देयर ऑल्सो. अगर किसी की क्लासेस मिस हुई है और समहाउ जो न्यू स्टूडेंट है, जो न्यूली ज्वाइन कर रहे, फॉर देम जो पहले से स्टूडेंट है, दे हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दैट, और उनका ऑलरेडी हो चुका है. आई डोंट थिंक कि बाकी इसके स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होंगे जो कि ओल्ड स्टूडेंट्स. बट दो स्टूडेंट्स हु आर न्यूली ज्वाइन, प्लीज गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग अनलेस एंड अंटिल यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ कंसेप्ट. ठीक है. प्लीज म्यूट योर माइक. तो प्लीज म्यूट योर माइक. Okay, 40 participants, one person is waiting. Right. Fine. In last class, we have discussed about what? Yes, Sejal, tell me. In last class, we have discussed up till which topic? कहाँ तक हमने डिस्कस किया? Yes, Prashansa, Sejal. Most probably functions of plasma membrane, right? Functions of plasma membrane. So please tell me, anyone, what are the functions of plasma membrane? Cell growth. Yes. Why? Because plasma membrane is somewhat quasi-fluid kind of structure. Quasi-fluid kind of structure means ऐसा कुछ fluid structure है कि जो flexible है, तो वो growth को भी एक, अगर cell grow हो रहा है तो वो expand करने के लिए भी उसको क्या करता है, allow करता है. ठीक है. Cell growth, endocytosis, cell division. Yes, fine, very good. यानी स्टूडेंट्स रिवाइज कर रहे हैं. दो स्टूडेंट who are really sincere, जो स्टूडेंट सिंसियर है वही रिवाइज कर रहे हैं, और जो सिंसियर नहीं है वो समझ में आ जाता है. बिकॉज जब मैं देखती हूँ ना रिकॉर्डिंग्स में, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कितने स्टूडेंट ने व्यू किया है. और मोस्टली जो ओल्डर वीडियोज है हमारी, जो रिकॉर्डिंग्स है, वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तब नहीं थे. फिर भी उसमें अगर मैं व्यूज देखूँ तो हार्डली 2 और 3 मीन्स अभी भी आपने पहले तो कहते थे कि मैम आप प्लीज रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिए, बट राइट नाउ इफ दैट रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, देन आल्सो you will not get any kind of benefit of that. So no problem. आप लोग, today is 49 participants including me, 50. Very good figure. So, okay. Wait for a while. क्या हो गया, ये मिनिमाइज भी नहीं हो रहा. चलो मुझे स्लाइड शेयर करनी है.
Okay, students. Yes. Right. Mm, Neetu ma'am, Neetu ma'am, I will call you after 1 hour. Hmm. नहीं नहीं आप सेंड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम. हाँ, ओके ओके ओके, आई विल कॉल यू. ओके, रिकॉर्डिंग भी शुरू. ठीक है. ओके. Is this slide visible to you? Yes or no? Please tell me. Yes, students. Yes. Bhavika, yes. Okay, fine. No problem. Setup हो गया, and we can start. In last class we have discussed about up till this, ठीक है, functions of plasma membrane. यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि there are several functions of plasma membrane. There are several functions of plasma membrane, right? But the main function of plasma membrane is what? To transport. ट्रांसपोर्टेशन में जो फंक्शन है, दैट फंक्शन इज द मेन. ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, राइट? ऑडियो वीडियो सब ठीक है. ठीक है. अब ये जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन है. कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? दैट we had already discussed in our earlier class. How many types of transportation? 2 types. Anyone please tell me what are the 2 types of transportation? Yamini, yes. One is passive and another one is active, right? One is passive transport and another one is active transport. See, this is a very wonderful diagram. ये diagram काफी अच्छी है. With this diagram you can you can visualize that कि what type of passive transportation takes place. कि क्या हो रहा है कि passive transportation भी several type के. Obviously प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है. ट्रांसपोर्टेशन में सेल के अंदर किसी को आने देना है, सेल के बाहर किसी को जाने देना है. दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ फंक्शन वी कॉल इट एज ट्रांसपोर्टेशन. ठीक. तो उसमें भी 2 टाइप, एक है पैसिव, एक है एक्टिव. पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल ट्रांसपोर्टेशन जिसमें कि विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी की रिक्वायरमेंट ना होते हुए जो प्रोसेस हो रही, दैट इज अ पैसिव वन. एंड एक्टिव से ही पता चलता है, मैंने आपको कहा था ए से याद रखना है, ए से एक्टिव और ए से एटीपी रिक्वायरमेंट. ठीक. तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के भी 3 टाइप है. व्हाट आर दे? दे आर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन. अब हमने ये तीनों पॉइंट्स कर लिए थे क्या? ये जस्ट मुझे बता दीजिए कि हमने ये तीनों पॉइंट्स को अच्छे से देख लिया था कि क्या नहीं हुआ था. नो, गिरीश से नो. ओके फाइन. अब देखो, दिस इज अ ओवरव्यू. एंड if I'm talking about transportation, I'm talking about 2 ways of transportation, passive and active. So what exactly is the difference between them? One is there is no energy needed. Passive में along the flow, मैंने कहा था आपको, अलग अलग नाम बताए थे. along the flow यानी फ्लो की तरफ जाना है, मीन्स हायर से लोअर की तरफ जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई भी चीज हायर से लोअर स्मूथली चली जाती है along the flow. ठीक है. हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वी कॉल देम एज डाउनहिल आल्सो, हम उसको डाउनहिल भी कहते हैं. तो व्हाट आर द सेवरल वेज ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, मीन्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं,
अलोंग ग्रेडियंट जा रहे हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, जहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल है वहां से कम, जहाँ पे कम मॉलिक्यूल है उनकी तरफ ट्रैवल होगा। ये हमारा नेचर का लॉ है, हमने ये भी कहा था, नेचर में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, उसी को हम डाउन हिल भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम टूवर्ड्स दी ग्रेडियंट भी कहते हैं, टूवर्ड्स दी कॉन्सेंट्रेशन भी। ठीक है, अलग अलग नाम से किसी भी वे में आ सकता है। ये तीनों भी क्या है आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के तीन वेज होते हैं। क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या डिफ्यूजन वाया होगा? क्या नहीं। देयर इज अ वन वे ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इन विच we are going to discuss about gaseous, how gaseous gets flow. gaseous क्या, gaseous molecules क्या होते हैं? They just diffuse within the plasma membrane and just enter inside it. गैसियस मॉलिक्यूल को कोई रोक नहीं पाता है, हमने ये डिस्कस कर लिया। सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस एंड थर्ड वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ऐसे कोई डिफ्यूजन कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, डिफ्यूजन मीन्स सिंपल कि हाँ डिफ्यूज हो रही है गैस सिंपल वे में, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं, कोई किसी को रोक नहीं पा रहा। बट कभी कभी क्या हो जाता है ना, डिफ्यूजन तो होता है बट वो कहता है कि यार ऐसे इजीली तो नहीं होगा, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ऐसे करो कुछ मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करो, कुछ दे दो मुझे ऐसा कोई मॉलिक्यूल कि जिसके हेल्प से मैं वो डिफ्यूजन अच्छे से कर पाऊँ। That type of facility, if that type of facility is required in diffusion process, that we call it as facilitated diffusion. That we will see that now. और कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम फैसिलिटेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गए तीन सब पॉइंट्स किसके, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मीन्स इन तीनों वे में से किसी एक वे से हो रहा है। एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये तीनों चीजें साइमल्टेनियस भी चल सकती है। These three things simultaneously occur in a same plasma membrane. और आप मुझे बताना जरा कि कौन से सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम मैक्सिममली इसकी स्टडी कर रहे हैं। ये जो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं कि साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरीज की है कौन से सेल को कंसिडर करके की है, विच सेल, yes, anyone? RBC, सिद्धेश says RBC, very good सिद्धेश। ठीक ठीक वेरी ओके। ये तो हो गया पैसिव का। पैसिव में हमें तीन देखना है, माइंड में क्लियर रखना। एक्टिव में हम क्या देखने वाले, एक्टिव में हम देखने वाले पंप। क्या देखने वाले, पंप। आपको भी पता है अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो वहां पे भी हम पंप लगाते हैं मशीन, जिससे पानी क्या होता है, हम खींचते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, स्प्रेड आउट करते हैं। तो दैट इज अ पंप। और ऑब्वियसली जब लाइट चले जाती है तो पंप वर्क नहीं करता। वैसे ही पंप मीन्स पंप रिक्वायर्ड एनर्जी, इस बेसिस पे वो याद रह सकता है कि पंप जो है वो ऐसे तो काम करेगा नहीं सिंपल वे में, इट रिक्वायर्ड व्हाट, एनर्जी। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एनर्जी नीडेड होता है, that is energy needed. Saloni raise hands. Why this is so? If any problem with respect to concept, so Saloni you can ask me in the chat box. ठीक है? So active transportation में क्या होता है? Active transportation में slow to high की तरफ ट्रांसफर होता है, and somehow high to low भी होते हैं, जिसमें कि कभी-कभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कहा था माइंड में एक जगह पे इसको भी रखना है। जनरली आपको क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएंगे, लो टू हाई, बट अगर उन्होंने कहा कि इज ऑलवेज लो टू हाई, नो, सम टाइम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन भी टाइप ऑफ मूवमेंट इज आल्सो टेक्स प्लेस इन दैट एटीपी इज रिक्वायर्ड। ऐसा हो सकता है सम टाइम, मोस्टली लो टू हाई, याद रहेगा ये। तो एक हो गया वे हमें पढ़ना है पंप का। दूसरा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, दैट हैव ऑलरेडी डिस्कस इन योर लास्ट क्लास। फिर भी इसका कंसेप्ट एंडो और एक्सो का एक्टिव के बेसिस पे कैसे आ रहा है, दैट आई विल कोरिलेट इन दिस टुडेस क्लास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, ये हो गया इस वे में चलना। पहले पैसिव को देख लेते हैं क्या। पैसिव में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। देखो ये टॉपिक जैसे ग्राम स्टेनिंग प्रिंसिपल था, थोड़ा सा कंफ्यूज था समझने के लिए। वैसे तो है नहीं, हम इतना स्लो जा रहे हैं उस बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है
बट फिर भी इसको अच्छे से लो, क्योंकि आज आगे इसकी आज मैंने क्वेश्चंस भी लाए हैं, देखते हैं हमारा कहाँ तक होना चाहिए। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऐसे प्रोसेस है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें हम सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जो कि मूव हो रहे हैं हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंस आपको पता है। अगर मैं कभी अगर वाटर लूं और वो वाटर में अगर मैं शुगर को ऐड करूं, दैट शुगर इज अ सोल्यूट and that water is a solvent, and the because of this and the mixture that is sugar solution जो कि water में घोल के बनाया हमने, that is your what, that is your solution, उसको हम solution कहेंगे। solvent जिसमें हम घोल रहे हैं that is a water, और solute जिसको हम ऐड कर रहे हैं उस solvent में मिक्स करने के लिए that is a solute जो कि small amount में as compared to solute। ठीक है, अगर सोल्यूट ज्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, बताना जरा। ऐसे इन जनरल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जब सोल्यूट ज्यादा बढ़ जाए सॉल्वेंट से तो क्या होगा। यहाँ तो मैं कोई यूज करनी है, जस्ट पूछ रही हूँ, सोल्यूट अगर ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा। आज थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट रहेगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे भी मैं स्लो करूँगा। ठीक है, यस, हेट्रोजीनस की बात नहीं कर रही। अगर सोल्यूट ज्यादा बढ़ जाए, एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्वेंट में सोल्यूट मिक्स हो जाता है, अगर सोल्यूट ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, it will not dissolve completely, it will precipitate, we can say, right? ये dissolve we can't if it will not dissolve means you will get residues now। अब वो पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इतने ज्यादा used up हो गए कि अब no more water molecule, no more solvent molecules get dissolve that solute। ठीक है, तो इसीलिए तो अगर हम कभी लड्डू बनाए या कुछ बनाए तो हम शक्कर वी कैन से चीनी शुगर को हम घोलते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल में इतनी ज्यादा शुगर हो जाती है कि वो जमने लगती है, क्योंकि अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं है, अब कम हो गए और सोल्यूट अभी फिर भी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इन जनरल पूछा था मैंने, it will not be just like in winter formation of water vapors। yes चलो, अब डिफ्यूजन, बहुत दूर तक चले गए गिरीश, वापस आओ गिरीश, बायो के लेवल पे चलते, केमिस्ट्री को ऐड नहीं करते, थोड़ा सा आ गया था। डिफ्यूजन मीन्स जिसमें कि सोल्यूट मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव हो रहे हैं, और हमने पैसिव में भी तो यही बात की थी, मॉलिक्यूल्स गेट्स ट्रैवल फ्रॉम हायर to lower concentration, this is the concept of 9th class, right? तो फॉर मोस्टली डिफ्यूजन में हम गैसियस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जो कि डिफ्यूज हो जाते हैं हायर से लोअर की तरफ। कहीं पे प्रेशर भी हाई है तो वहां से हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ भी चली जाएगी। ठीक है, तो वो एक डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है, एक ग्रेडियंट के बेसिस पे काम होता है। ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस, जहाँ पे ज्यादा है और जहाँ पे कम है, उन दोनों में जो बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल ट्रैवल हो रहे हैं, दिस इज ए डिफ्यूजन, सिंपल। अब अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लो टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे हम इसको नहीं पकड़ेंगे। आप बोलोगे मैम अभी आपने बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हो, उसमें हम हाई टू लो की बात कर रहे हैं, हाई टू लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम हाई टू लो की ही बात करेंगे। मैंने इसलिए ऐसे लिखा है यहाँ पे कि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ ले कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लो टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इज अ फिनोमेनॉन ऑफ ऑस्मोसिस और नॉट? यस, दिस इज आल्सो फिनोमेनॉन ऑफ ऑस्मोसिस। इसने उल्टा लिखा है। जनरली हम क्या लिखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल मूव्स from higher water concentration to the lower water concentration, higher water concentration to the lower water concentration। जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर है, जहाँ पे ज्यादा वाटर है वहां से कम की तरफ वो ट्रैवल होगा,
higher to lower. That is a phenomenon of what? That is a phenomenon of passive transport, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट की बात करेंगे. बेसिकली अगर हम अपने बायो की बात करें तो हम इसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट के बेसिस पे बात करेंगे. यानी हम जो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की बात कर रहे हैं. तो वाटर मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन. इसको उल्टा बोल रहे हैं, बताती हूँ. हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव होंगे. दैट इज ऑस्मोसिस. वी कॉल विद द हेल्प ऑफ एनी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन. ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस है. यहाँ पे ये कह रहा है कि लोअर टू हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. अरे ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है. अगर कोई वाटर, अगर कोई एक एनवायरमेंट है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वहां पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो ही तो रहेगा. लॉजिक है. वाटर ज्यादा है इसलिए वहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो है. वाटर से वो एक्सीड नहीं कर रहा है, तो वो वाटर ज्यादा है. और ऐसा कोई एनवायरमेंट जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है. अब एक तो ऐसे लिखो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लिखो, अदरवाइज लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लिखो टुवर्ड्स हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लिखो. बात तो एक ही कर रहा है ना, बात तो वो एक ही कर रहा है. हाँ ऋतुजा, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक दैट वी विल सी टुडे आल्सो. ठीक है. सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लोअर कह रहे हैं मींस वो इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन. सोल्यूट वाटर कॉन्सेंट्रेशन हायर कह रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन. समझ रहे हो मेरी बात? ऑस्मोसिस में अगर हम दो वे में डिफिनेशन लिख सकते हैं. हम एक वे ये लिख सकते हैं कि जिसमें हम वाटर के बेसिस पे बात करेंगे. हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. द फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. अदरवाइज मैं ये लिखूं फ्रॉम लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू दी हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. क्लियर? up till this is clear. ये पहले से ही हमारा, हमने पहले ही पढ़ा है 9th क्लास में इसको. जस्ट मैंने एक ब्रश अप कर दिया. चलिए आगे. अब ऑस्मोसिस ये देख लिया हमने. वी हैव कवर्ड दिस. व्हाट एग्जैक्टली डिफ्यूजन? मैक्सिमली गैसियस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम डिफ्यूजन के बेसिस पे यहाँ पे. ठीक है. ऑस्मोसिस को अब हम और डिटेल में पढ़ने वाले 1 2 3 तीन प्रोसेस. जैसे कि ऋतुजा ने कहा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक. ठीक है. फिर हम आ जाएंगे फैसिलिटी. चलो ऑस्मोसिस. अनदर वे ऑफ अ सेल मेंटेन होमियोस्टेसिस. अब अगर हमारे बॉडी में होमियोस्टेसिस मेंटेन करना है तो osmosis is the very important phenomenon. The osmosis maintain ionic balance, water balance in our body properly. So before starting with this osmosis, you just tell me what exactly is the homeostasis. क्या होता है homeostasis? Homeostasis क्या होता है? To maintain the homeostasis. To maintain the homeostasis. What does it mean? What does it mean? क्या होता है? Yes, सेजल, भूमिका, भाविका. नहीं सिद्धेश, homeostasis is not at all shape. Homeostasis, body react to change. Yamini, somehow answer is right. Yes. Maintain the secretions of hormone. Maintaining secretion of hormone not that much extent. No. Homeostasis. check. कुछ नहीं. Homeo means same. Homeo का मतलब होता है same. And stasis का मतलब होता है state. कहीं पे भी रहो ना, हमारी बॉडी सेम स्टेट में रहनी चाहिए. यामिनी somehow right.
कहीं पे भी रहे, हमारी बॉडी सेम स्टेट में रहनी चाहिए। जो भी चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में उससे उसके अगेंस्ट बॉडी ऐसे कुछ रिएक्ट कर रही है कि सो दैट कि बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं कर रही। मीन्स वी आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल। हमारे बॉडी में हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी हम खाते हैं वो लगाते हैं खुद के बॉडी के एक स्टेट को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए। मीन्स तो भले आप अफ्रीका के हमारे आप सहारा के डेजर्ट में चले जाओ, या आप एकदम से वी कैन से कि फिनलैंड में चले जाओ, ठीक है, या कोई यूरोप कंट्री में चले जाओ जहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, कहीं पे भी चले जाओ, although unless and until कहीं पे भी चले जाओ, your body temperature is always 37 degree. Contain body temperature accounts the कृष्णा बट वो थोड़ा सा definition is not that much simple and straight, ठीक है। तो कहीं पे भी चले जाओ बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन हो रहा है, बॉडी की जो ब्लड की पीएच है वो भी उतनी ही मेंटेन हो रही है 6.8 टू 7.2। यानी हर कोई स्टेट बॉडी में जो आयनिक बैलेंस है वो भी एज इट इज है, हर कोई स्टेट होम्योस्टैसिस है, मींस सेम स्टेट है, कहीं पे भी चले जाओ मेंटेन हो रहा है। बिकॉज इसको मेंटेन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी लगती है दैट इज एटीपी। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी को क्या करती है इस प्रोसेस में लगाती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी तो प्रोसेस बॉडी में चलती रहती है कि जो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करती है, बट अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की तो ऑस्मोसिस भी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमें होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। सेल के अंदर का होम्योस्टैसिस मींस सेल के अंदर ना पानी ज्यादा हो, ना सेल के अंदर पानी बहुत कम हो, ना सेल के अंदर आयंस बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाए, ना वो बहुत कम हो जाए। जितनी रिक्वायरमेंट है, वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, whatever is the requirement of that particular cell, your environment should fulfill that requirement with the help of osmosis। जो भी रिक्वायरमेंट है सेल की, जितने एक्सटेंट तक है उतनी रिक्वायरमेंट ऑस्मोसिस के जरिए उसकी फुलफिल करनी है, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, जस्ट मेंटेन द बैलेंस, जस्ट मेंटेन द सेम स्टेट, ठीक है। उसको कहते हैं होम्योस्टैसिस मेंटेन करना, और ये पॉसिबल हो रहा है एक प्रोसेस जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। देयर आर सेवरल अदर प्रोसेस जो कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जब देखते हैं तब देखेंगे, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो होम्योस्टैसिस का मतलब समझ गया आपको, सेम स्टेट मेंटेन करना। इसीलिए तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो कि फिश रेप्टाइल्स होते हैं वो खुद का टेम्परेचर खुद कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए तो पानी में रहती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो खुद का टेम्परेचर उस एक्वेटिक टेम्परेचर के बेसिस पे मेंटेन कर रही है। बाहर के एटमॉस्फेयर में आते ही वो मेंटेन नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। उसका खुद का कुछ भी स्टेट नहीं, उसकी स्टेट फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। वो डिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो देख ऑस्मोसिस के भी 3 प्रोसेसेस में होता है। ऑस्मोसिस जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है। हाइपरटोनिक का कंसेप्ट क्लियर होगा तो मुझे फटाफट बताने में आसानी होगी, नहीं है तो भी मैं अपने लेवल पे चलूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑस्मोसिस, आइसो का मतलब यहाँ पे इस स्लाइड में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, हाइपरटोनिक, इसको जाने दो, ऐसे कभी वर्ड्स नहीं आते, रनिंग आउट टाइम की वजह से तो बड़ी परेशान हूँ, 10 मिनट। अब मोर वाटर इन सेल देन आउट, more water outside the cell than in isotonic condition, कुछ नहीं ऐसे, ये सब सेल्स, ठीक। अब जो ऑस्मोसिस हो रहे हैं 3 वे में हो रहा है। देखो हाइपरटोनिक इसको याद रखना है कि सेल को हमने क्या किया है, हमने आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो आरबीसी को हमने क्या किया, ऐसे कोई एनवायरमेंट में रखा है, ऐसे कोई एनवायरमेंट में रखा है, ऐसे कोई सराउंडिंग है। आरबीसी सेल का भी तो सराउंडिंग होगा, ऑब्वियसली सेल है तो सेल के साइड बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये उसका सराउंडिंग हो गया। ये जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में
लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपरटोनिक, टोनिक से याद रखना सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा और टोनिक का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ऐसे वे में याद रखो, ठीक है। हाइपर मीन्स सॉल्ट सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, वॉट एवर कुछ भी हो सकता, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, एनवायरमेंट में, सेल के बाहर। ऑब्वियसली सेल के बाहर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, दैट सोल्यूट मे बी अ ग्लूकोज, दैट सोल्यूट मे बी अ आयंस, एनीथिंग apart from water. Water is a solvent one. और inside the cell as compared to that, inside the cell solute concentration क्या है, कम है। Obviously अगर solute concentration सेल के बाहर ज्यादा है तो solvent तो उल्टा रहेगा, solvent concentration क्या रहेगा, solvent concentration क्या रहेगा, मीन्स वाटर की बात करें तो क्या रहेगा, वाटर कम रहेगा, इसलिए तो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड कोई चीज कब बनती है, जिसमें कि सोल्यूट ज्यादा ऐड करते हैं, ठीक है, मींस वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। और इसमें अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम है तो ऑब्वियसली वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेल के अंदर ज्यादा होगा। अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस, मींस इन दैट आई एम कंसिडरिंग वाटर फ्लो, पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। तो जहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मींस कंडीशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उस कंडीशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। सेल को इतने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कैसे रखेंगे हम, सेल तो थोड़े थोड़े दिनों बाद सेल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नेचर ने क्या किया है, नेचर ने क्या किया है, उसको हाइपरटोनिक, उसमें ऑस्मोसिस फिनोमेनन को लगा। यस, सोल्यूट ज्यादा है क्या, तो सॉल्वेंट क्या रहेगा, कम रहेगा, और अंदर सोल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। हो गया डिफरेंस, डिफरेंस इज क्रिएट, मींस ग्रेडियंट इज मेंटेन। कौन सा ग्रेडियंट, हायर टू लोअर, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल ट्रेवल होंगे, और बिकॉज ऑफ दैट सराउंडिंग में जो कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन थी, हाइपरटोनिक कंडीशन थी, वो मेंटेन होगी, वो बैलेंस होगी। बट सेल के अंदर से हम वाटर जब ले रहे हैं तो सेल समहाउ क्या होगा, श्रिंक होगा। अगर वो वाटर ज्यादा लेते हैं, अगर वो वाटर ज्यादा लेते हैं तो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा। देखो, हायर सोल्यूट आउटसाइड, हमने पढ़ा ना अभी, हायर सोल्यूट आउटसाइड, हायर वाटर इनसाइड, अभी तो पढ़ा, हायर वाटर इनसाइड, इनसाइड द सेल, वाटर मूव्स आउट, यस वाटर मूव्स आउट, हाँ, सेल श्रिंक, पानी बाहर जाएगा तो सेल तो सिकुड़ेगा ना, श्रिंक तो होगा। दिस इज अ कंडीशन ऑफ हाइपरटोनिक। क्लियर, उल्टा चलो, ये सॉल्वेंट सोल्यूट इनवर्स रहेंगे, जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है वहां पे सॉल्वेंट कम रहेगा, जहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है वहां पे सोल्यूट कम रहेगा, ठीक है। अब आइसोटोनिक कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि सॉल्वेंट और सोल्यूट इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक। अब वैसे ही कंडीशन को अप्लाई करना है, रिवर्स कंडीशन को अप्लाई करना है कहाँ पे, आपको, आपको हाइपोटोनिक में। ऑब्वियसली सेल के सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रेशन जो था वो हाइपो था, हाइपो मींस लेस, लेस टोनिक का मतलब सोल्यूट, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लेस है, तो ऑब्वियसली वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, हाई रहेगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, हाई रहेगा, एज कंपेयर टू इनसाइड सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, लो रहेगा। तो वाटर हाई, वाटर लो, तो हायर टू लोअर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ट्रेवल होंगे टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन। सेल के अंदर, सेल से बाहर के प्रपोर्शन में सेल के अंदर कंडीशन क्या थी, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी। बाहर कंडीशन हाइपो थी बट अंदर कंडीशन हाइपर थी, तो हाइपो थी तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ ट्रेवल हुए, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक। ये भी कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑस्मोसिस। इसमें क्या हो रहा है, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तो ऑब्वियसली सेल जस्ट स्वेल, सेल जस्ट स्वेल एंड वाटर मॉलिक्यूल मूव्स इनसाइड। दिस इज क्लियर। अब आइसो पढ़ लेते हैं फटाफट, 4 मिनट दिखा रहा है।
आई गेस कि मेरा ना ये नहीं हो रहा है ना, यहाँ मेरे मोबाइल से पता नहीं क्या हो गया है, तो मैसेजेस नहीं जा रहे। आई गेस आपने भी मैसेज किया होगा कि मार्क द कंफर्मेशन का मैंने मैसेज डाला था, वो भी नहीं गया होगा। तो रीजॉइन करना है उसी लिंक पे, जस्ट जो भी रिकॉर्डिंग है उसको जस्ट कन्वर्ट होने देना 5 मिनट के तक, उसके बाद आप रिजॉइन कर लेना उसी लिंक पे। देखते हैं, ठीक है। अब क्लियर है बच्चों? अब ये देख लेते हैं आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक में क्या होता है? कंडीशन इज अ सिंपल वन कि हाँ बाहर और अंदर, बाहर और अंदर कंडीशन क्या है? सेम है। देयर इज नो एनी हाइपर कंडीशन इज देयर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर इक्वल है, सोलिड मॉलिक्यूल यहाँ करो या सोलिड मॉलिक्यूल यहाँ करो, इक्वल है, इक्वल है यानी इक्वल है, ठीक है, इक्वल। और वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या है? इक्वल है। दिस इज व्हाट आइसोटोनिक कंडीशन। तो तब भी क्या मूवमेंट हो रहा है? क्या हो रहा है? सेल में ये मूवमेंट होता रहता है। कोई कोई चैनल सेल के अंदर, कोई कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर ऐसे प्रोटीन बैठे होते हैं कि जो कॉन्स्टेंटली ओपन रहते हैं, दे आर ऑलवेज ओपन, ऐसे भी होते हैं। तो वो एक्सचेंज करवाते रहेंगे, बट कैसे? क्या किस वे में? दोनों वे में, एंट्री और एग्जिट, बोथ वे में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। अगर आना और जाना एक जैसा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? नो नेट मूवमेंट। बिकॉज आना और जाना कर रहे तो न्यूट्रल हो रहा है ना, न्यूट्रल हो रहे तो फाइनली हम उस न्यूट्रल कंडीशन को हम नो नेट मूवमेंट कहते हैं। बेसिकली हो रहा है मूवमेंट, जितना जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, बट डिफरेंस देखो तो कंडीशन इज सेम। 40 मॉलिक्यूल अंदर गए, 40 मॉलिक्यूल बाहर आए, एक ही तो कंडीशन है। फाइनली 20,000 सैलरी है और 20,000 खर्चे हो रहे, तो नो नेट सेविंग, नो नेट सेविंग, तो वैसे ही नो नेट मूवमेंट। बट इट डजंट मीन कि आइसोटोनिक में एकदम सेल चुपचाप बैठ जाता है। मूवमेंट होता है, दोनों वे में होता है, इक्वल वे में होता है, इसलिए उसका कोई डिफरेंस नहीं कि कोई हाँ इसमें ज्यादा इसमें कम, इसलिए नो नेट मूवमेंट। ये नॉर्मल कंडीशन हमारी ऐसे होती है। इसको कहते हैं होम्योस्टैसिस मेंटेन करना। सेल ने अपना एक स्टैसिस मेंटेन किया है कि हाँ इतना मुझे आयन चाहिए, इतना मुझे वाटर चाहिए, इतना ही चाहिए वाटर, इसके अलावा नहीं, अदरवाइज मेरी खुद की सेल की खुद की तबीयत बिगड़ जाएगी, ठीक है। इक्वल सोल्यूट एंड इक्वल वाटर, दिस इज ऑल अबाउट। इसमें कोई भी सेल श्रिंक नहीं होगा, सेल प्रॉपरली आरबीसी अपना डिस्क शेप मेंटेन करेंगे, नो एनी स्वेलिंग, नो एनी श्रिंकेज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस, दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। ये तीनों प्रोसेस हमने पढ़ ली ऑस्मोसिस के बेसिस पे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कल देखती हूँ, कल भी क्लास हो तो कल ले लेती हूँ, बिकॉज कल आपने मुझे लेने नहीं दिया सैटरडे। ओके फाइन, लेस देन 1 minute, you just rejoin after 5 minutes. Let the recording to convert and then you can join. Fine, yes. How many students are there? 45. देखो 5 स्टूडेंट्स तो गायब हो गए, 50 थे ना। मुझे लगता है कोई पेरेंट्स भी एनरोल होते हैं, आई गेस पेरेंट्स भी एंटर हो जाते हैं और बाद में चलेगा। फिर 5 मिनट के बाद ज्वाइन करना है, ये तो बैठे रहोगे, क्लास शुरू हो जाएगा। रिकॉर्डिंग फास्टली कन्वर्ट होनी चाहिए।